नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के एक ऐलान से आज बीजेपी बुरी तरह परेशान हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी को और आरएसएस को यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को साफ साफ बता दिया है कि पूरे देश में कांग्रेस ही एक अकेली ऐसी पार्टी है जो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। बीजेपी ये मानकर बैठी थी कि अब तीसरी बार सत्ता में मोदी आ गए हैं और हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बीजेपी जीत गई है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी की सत्ता अब सुरक्षित रहेगी और अब तक उसने जो मनमाना शासन किया है उसे भी आगे वो जारी रखेगी। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक बार फिर बता दिया कि बीजेपी अपने मकसद में इतनी आसानी से कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस उसके सामने देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए ढाल बनकर खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने तो आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि किसी और देश में अगर वो होते तो अब तक उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता, यानी देशद्रोह का मामला चल चुका होता। आपको बता दूं कि कल मोहन भागवत ने कहा कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तभी देश को सच्ची आजादी मिले और उन्होंने यानी मोहन भागवत ने संविधान पर भी सवाल उठाए, जिस पर राहुल गांधी ने आज बड़ा पलटवार किया है। दरअसल आज कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन था और इस मौके पर ही राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं। आइए जरा उसकी एक वानगी सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी और क्यों यहां से बीजेपी आग बबूला है और यहां से परिस्थितियां किस दिशा में जाती हुई दिखाई देती हैं। सुनिए जरा। Of a centralized understanding, Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming, right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the Constitution. तो सुना आपने, यहां साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर किसी और देश में होते तो देशद्रोह का मुकदमा चलता मोहन भागवत के ऊपर। बहुत बड़ी बात, यहां बड़ा हमला करते हुए राहुल गांधी। लेकिन उसके अलावा भी राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा है। आइए उसकी एक वानगी और सुनते हैं, राहुल गांधी ने इसके आगे क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए जरा। The people who are in power today do not salute the tricolor, do not believe in the national flag, do not believe in the constitution, and they have a completely different vision of India than we do. They want India to be run by a shady, hidden, secret society. They want India to be run by one man, and they want to crush the voice of this country. They want to crush the voice of the Dalits. They want to crush the voice of the minorities. They want to crush the voice of the backward castes, of the tribals. This is their agenda. And I would also like to say clearly that there is no other party in this country that can stop them. And you will see, the only party that can stop them is the Congress party. And there is a reason for it. The reason is that we are an ideological party. And our ideology does not emerge yesterday. Our ideology, like the RSS ideology, is thousands of years old, and it has been fighting the RSS ideology for thousands of years. We have our symbols. We have Shiva. We have Buddha. We have Guru Nanak. We have Kabir. We have Mahatma Gandhi. We have our symbols. And these are all the symbols who have shown the correct path to this country. Please name one
one symbol of the RSS ideology that is revered in India today. Name one symbol. Was Guru Nanak from the RSS ideology? Was Buddha from the RSS ideology? Was Krishna Bhagwan from the RSS ideology? Not a single one. Because every single one of these people fought for equality, fought for brotherhood, fought for. तो राहुल गांधी यहां सीधा हमला बोलते हुए आरएसएस पर और बताते हुए आइडियोलॉजी ऑफ आरएसएस की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में क्या फर्क है और इस देश में कांग्रेस ने या इस देश ने क्या कुछ दिया है और आरएसएस ने क्या कुछ दिया है, ये सारी बातें रखते हुए यहां राहुल गांधी के अलावा आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोहन भागवत को चेतावनी दे दी है। ये जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। इसी मंच से आज जब यहां एक नए भवन में आज जब कांग्रेस पार्टी का कार्यालय जाता है और नया भवन जो है वो दिल्ली में 9A कोटला मार्ग है और यहां पर जब जाता है तो फिर उसी मंच से पहले राहुल गांधी और उनके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आजादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आजादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आजादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आजादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आजादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आजादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आजादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आजादी के लिए मरे हैं, आजादी के लिए ठोकरे खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंडम करता हूं, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। तो यहां आपने सुन लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीधा सीधा हमला बोला है, बिल्कुल राहुल गांधी की तर्ज पर, और सीधा मोहन भागवत ने जो बयान दिया उस बयान का खंडन उधर से तो आया नहीं, लेकिन इधर जो हमला हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो दोस्तों कांग्रेस चाहती तो आज केवल अपने गौरवशाली इतिहास, तमाम प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों, इन सब पर बात करके इस उद्घाटन का उत्सव मना लेती, लेकिन आज जिस तरह कांग्रेस ने अपने मुख्यालय से बीजेपी को चेतावनी देने का काम किया है, उससे जाहिर होता है कि कांग्रेस की अप्रोच अब बदल रही है। उसका मुख्यालय ही नहीं बदला है, बल्कि अब उसके काम करने के तौर तरीके भी बदल रहे हैं, यह साफ दिखाई देता है। इससे पहले बेलगावी में जो सम्मेलन अभी हुआ था, उस सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन मजबूत करने की बात कही थी, और अब राहुल गांधी ने बता दिया है कि केवल कांग्रेस ही बीजेपी से लड़ने का मादा रखती है, जिसके बाद बीजेपी तिल मिला गई है। जेपी नड्डा ने एक्स पर आज
राहुल गांधी के इस बयान के बाद ट्वीट किया है और ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, इंग्लिश में है लेकिन उसका हिंदी तर्जुमा थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूं। और कह रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को उत्साहित करने का रहा है जो कमजोर भारत चाहते हैं। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब देश की अखंडता से समझौता और लोगों के विश्वास को धोखा देना था, लेकिन भारत के लोग समझदार हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो राहुल गांधी और उनकी सड़ी हुई विचारधारा को हमेशा ठुकराएंगे। ये कह रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे, माफी चाहूंगा जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयान के बाद साफ साफ यहां पर कि राहुल गांधी की, इसके अलावा जेपी नड्डा लिख रहे हैं कि अब कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है, अब उनके अपने नेता ने ही इसका पर्दाफाश कर दिया है। मैं राहुल गांधी की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने वो बात साफ साफ कही जो देश जानता है। यह कोई रहस्य नहीं है कि गांधी और उनके तंत्र का शहरी नक्सलियों के साथ गहरा संबंध है जो भारत को अपमानित और बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया या कहा है वो भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विभाजित करने की दिशा में है। ये बात यहां पर कह रहे हैं जेपी नड्डा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेपी नड्डा जो बात यहां पे कह रहे हैं और राहुल गांधी पर सीधे सीधे हमला बोल रहे हैं, नक्सली कह रहे हैं, अर्बन नक्सली कह रहे हैं कि यह कोई रहस्य नहीं है कि गांधी और उनके तंत्र का शहरी नक्सलियों के साथ गहरा संबंध है जो भारत को अपमानित और बदनाम करना चाहते हैं। ये सारी बातें जेपी नड्डा कहकर आखिर क्या यहां पर राहुल गांधी को अपमानित करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं? दरअसल गौर फरमाने वाली बात यह है दोस्तों कि नड्डा के बयान पर जो कुछ यहां पर आया है सामने, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी देश विरोधी हैं। यानी नड्डा राहुल गांधी को देश विरोधी बता रहे हैं। अगर राहुल गांधी का संबंध नक्सलियों से है और यह बात बीजेपी और उसकी सरकार जानती है, तो फिर अब तक राहुल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है बीजेपी, क्यों नहीं की गई? यह बड़ा सवाल है। या सिर्फ यह बयानबाजी है, अपना बचाव है, अपने लिए छतरी, जो अर्बन नक्सली शब्दों का छतरी है, उन छतरी को ओढ़ करके आप तमाशा देखना चाहते हैं? आखिर क्या है ये नड्डा साहब बताएंगे, क्योंकि वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और बीजेपी पर हमला बोला है, आरएसएस पर हमला बोला है राहुल गांधी ने। खैर आगे बढ़ें। और तेजस्वी यादव ने भी आज मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने इसी बयान पर, मोहन भागवत के बयान पर, वो सुन लेते हैं और चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। और पहले तेजस्वी यादव को सुनिए। कहा है देश को सच्ची स्वतंत्रता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली थी। मोहन भागवत जी सरासर जो है, जिन्होंने देश के आज़ादी को लेकर के शहादत दी, कुर्बानी दी, उनका ये इंसल्ट कर रहे हैं, उनका ये अपमान कर रहे हैं। ये गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, ये बाबा कुंवर सिंह का अपमान कर रहे हैं, रानी झांसी बाई का अपमान कर रहे हैं। ये लोग राव तुलार राम जी का जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने शहादत दी, देश के आज़ादी को लेकर के कुर्बानियाँ दी, और उनके साथ हजारों लाखों लोगों ने जेल में बंद रहे हैं, फांसी पे चढ़े, अंग्रेज़ों का जुल्म सहे, ये उनकी जो है अपना अपमान करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का कोई आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। ये लोग तो तिरंगा भी नहीं फहराते थे, बाद में बोला गया तब इन लोगों ने तिरंगा फैलाया। अब बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आज़ादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। अब ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, मतलब ये लोग आरक्षण को खत्म करके फिर बोलेगा कि सही में आज़ादी अब मिली। फिर ये लोग, हम मोहन भागवत जी से पूछना चाहते हैं, पिछड़ों और दलितों को आज़ादी कब मिलेगी, इसके बारे में जरा बताएं। ये लोग केवल जो मेन एजेंडा है उसको ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो मेन मुद्दे हैं उसको ये लोग केवल डाइवर्ट करना चाहते हैं। अरे अपने काम बीजेपी ने क्या किया बताएं मोहन भागवत जी कि आज 84 रुपया हो गया है डॉलर का रेट, $1 का रेट 86 हो गया। बताइए 86 हो गया। आज देश गुलामी की ओर जा रहा है, आप क्या बोल रहे हैं?
कौन लेके जा रहा है देश को गुलामी की ओर? इतना महंगा हो रहा, पहले क्या कीमत थी? तभी लोग रोते थे, देश गुलाम हो रहा, देश गुलाम हो रहा। अब इससे ज्यादा 86 रुपए से ज्यादा इनके 86 रुपए तो इनके राज में हुआ। अब कहाँ देश जा रहा है? गुलामी की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा? मोहन भागवत जी, ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे या जितने हमारे सुभाष चंद्र बोस रहे, इन लोगों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का अपमान देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मोहन भागवत जी को जो है बताना चाहिए कि पिछड़े दलितों को आजादी कब मिलेगी। तो यहां साफ साफ हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव भी और कह रहे हैं कि देश को आखिर बताना चाहिए कि आजादी कब मिलेगी। और ये जिस ढंग से कर रहे हैं मोहन भागवत या बीजेपी का यहां जिक्र करते हुए कि अभी तो राम मंदिर की बात हो रही है, कल को आरक्षण खत्म करने पर भी कहेंगे कि आजादी अब मिली है। तो अंबेडकर, और दूसरी तरफ आप अंबेडकर साहब, आप बाबा साहब अंबेडकर आपको याद होगा, और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान वाले अमित शाह के बयान पर बीजेपी अब तक बचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई है। और अब मोहन भागवत के आजादी वाले बयान का मामला खड़ा हो गया है। क्या इससे बीजेपी अब और घिर जाएगी? इसकी चर्चा हम करेंगे। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर जो हमला बोला है और इससे कैसे सियासी माहौल बदल गया है, ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। और राहुल गांधी का आप जान रहे हैं कि आज जो सीधा सीधा सुबह सुबह जो हमला है बीजेपी के ऊपर, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी सीधा हमला करते हैं और अकेली पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो सीधा हमला करती है बीजेपी पर, आरएसएस पर, और डरती नहीं, घबराती नहीं। हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, मिलिंद उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और सुनील शुक्ला जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, उत्सव का माहौल था, उधर नए कार्यालय में कांग्रेस पार्टी पहुंची, कांग्रेस का नया मुख्यालय, लेकिन वहां से जो बात निकली वो बहुत दूर तक पहुंच चुकी है और बीजेपी काफी हमलावर है, नाराज है, निराश है, क्या है ये सब कुछ तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसका पॉलिटिकल मायने, सियासी मायने क्या है? राहुल गांधी का ये हमला कितनी दूर तक गया है? राजीव जी, आज राहुल ने स्पष्ट रेखा खींच दी कि हम और वो, क्या फर्क है हम लोगों में। और ये बात सिर्फ राहुल ही कह सकते थे और राहुल ही कर सकते थे। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि मोहन भागवत का ये बयान देशद्रोह है और उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वहां बैठे हुए जो लोग थे, जो सुन रहे थे, सारे के सारे रोमांचित हो गए इस बात पे, और कांग्रेस के लोगों में एक नया जोश आ गया। देखिए, उन्होंने ये भी कहा साथ में कि ये काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी से लड़ने का, आरएसएस से लड़ने का। देश में ये काम और कोई नहीं कर सकता। बहुत सही बात कही उन्होंने। और जो बात उन्होंने नहीं कही वो ये है कि ये काम कांग्रेस में भी सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। आज देखिए कि आप माहौल किस तरह बदल गया कि राहुल के भाषण के बाद लोग पूछ रहे थे कि देश 2014 में आजाद हुआ है या 2024 में। कंगना रनौत की हम बात मानते थे, उन्होंने कहा था 2014 में आजाद हुआ, लेकिन आज मोहन भागवत कहते हैं कि जिस दिन जो है राम मंदिर शुरू हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस दिन हुआ 2024 में। तो ये तो इनके अंदर ही अंतर विरोध है, इन्हें खुद नहीं मालूम कि कब हुआ है। और खड़गे जी ने भी आज जबरदस्त रूप से आरएसएस को और बीजेपी को कंडेम किया। राहुल की जो बात है वो क्या है? राहुल ने कहा कि ये संविधान को ही असंवैधानिक बना रहे हैं। संविधान ही असंवैधानिक हो गया। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 से संवैधानिक लागू है, तो 1950 से लेके 2024 तक जो भी कुछ हुआ है वो सब गैर कानूनी असंवैधानिक हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जो थी वो काल्पनिक हो गई सारी की सारी। हम आपको बता दें, इतने लोगों की शहादत, शकील जी, इतने लोगों की शहादत, कुर्बानियां, शहादत। हम आपको बता दें यहाँ कि नए भवन में चर्चिल का वो कोट भी लगा हुआ है जो उसने हिंदुस्तानियों के खिलाफ बोला था। वो इसीलिए लगाया गया है कि लोग याद रखें कि अंग्रेज जो है
वो किस तरह से हम लोगों को अपमानित करने की कोशिश करते थे, और आज वही काम जो है आरएसएस कर रहा है। तो चर्चिल का वो कोट है जिसमें चर्चिल कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान आजाद हो गया तो यह देश गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा, जिनके छोटे छोटे क्षुद्र स्वार्थ होंगे और जो आपस में लड़ेंगे, जिन्हें जनता का कोई ख्याल नहीं होगा। क्या उन्होंने आज के दिन के लिए कहा था कि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली जाएगी? ये चर्चिल का कोट है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को, उस समय वो विपक्ष के नेता थे जब उन्होंने कहा था, लीडर अपोजिशन थे वो, उस टाइम बने नहीं थे, लेकिन उन्होंने भारत की आजादी का विरोध किया था। देखिए, जो आज राहुल ने कहा है सरदार पटेल, वो पहले ही कह चुके हैं 1948 में। आज बीजेपी आरएसएस सरदार पटेल का बहुत नाम लेती है। राहुल ने कहा भी कि इनका प्रतीक कौन है आरएसएस का? कोई नहीं। किसका नाम लेते हैं? किसी का नहीं। नाम लेते हैं सरदार पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बहादुर शास्त्री का। ये किसके नेता थे? आरएसएस के, बीजेपी के या कांग्रेस के? ये कांग्रेस के नेता थे, इनका नाम वो लेते हैं। और उन सरदार पटेल ने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या, ये उनको पत्र लिखते हुए कहा था आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख को, आपके द्वारा फैलाए गए हिंसक माहौल की वजह से हुई है और आप अभी भी उस माहौल को फैला रहे हैं। गांधी की हत्या के लिए आप दोषी हैं, आप जिम्मेदार हैं। उस वक्त आरएसएस पूरी कोशिश कर रही थी कि किस तरह से उस पर प्रतिबंध हट जाए। ये प्रतिबंध किसने लगाया था आरएसएस के ऊपर? भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने। तो आज राहुल ने वही बात कही, और राहुल में ही इतनी हिम्मत है। 24 के करीब मुकदमे चल रहे हैं आज राहुल के ऊपर, देश की अलग अलग अदालतों में। राहुल की तरफ से कई बार एप्लीकेशन दी गई कि एक जगह कर दिया जाए, बार बार मुझे जाना पड़ता है। सामान्य नियम यह है कि एक ही तरह के मामले अगर अलग अलग शहरों में चल रहे हैं, जो कि एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है कि किसी को परेशान करना हो तो हर जिले से एक एक मामला उसके खिलाफ कर दो, तो उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि उन्हें एक ही जगह कर दिया जाना चाहिए। लेकिन राहुल के खिलाफ जो मामले हैं उन्हें एक जगह नहीं किया जा रहा। और राहुल ने आज क्या कहा? उन्होंने जो परसों सीलमपुर में जो बात कही थी दिल्ली का चुनाव आगाज करते हुए, वो आज कही, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदिवासी, आप इन सब का अपमान कर रहे हो। मोहन भागवत जी, तिरंगे का कर रहे हो, संविधान का कर रहे हो, और दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े और आदिवासी का कर रहे हो। ये मिलके होते हैं 88%। अभी आपने तेजस्वी की बाइट सुनाई, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, वो भी हम बोल दें। उन्होंने कहा है कि आरक्षण पर जिस दिन आप बोल दोगे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, उस दिन आप समझोगे कि आजादी मिली है। हमें मालूम है इसी बिहार में, क्योंकि उन्होंने बोला था मोहन भागवत ने कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो आज तेजस्वी ने इस बात को कहा कि कल को हमें मालूम है कि हमारा आरक्षण खत्म करने के बाद आप बोलोगे कि असली आजादी तब मिली है। उन्होंने कहा पिछड़े और दलितों को आजादी कब मिलेगी आपके राज्य से? तो आज का दिन जो है भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का नया भवन तो बना ही बना है, और ये थोड़ा सा इतिहास हम आपको बता दें जी कि कांग्रेस का ये जो अपना मुख्यालय है ये 1948 में दिल्ली आया है। लोगों को शायद मालूम नहीं है, उससे पहले ये इलाहाबाद में चलता था कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय। और कहाँ चलता था? पंडित मोतीलाल नेहरू के खरीदे हुए आनंद भवन में। 16-18 बीघा का बंगला था जो उन्होंने खरीदा था, और नेहरू ने इसके बारे में लिखा है, जवाहरलाल ने, कि मेरे पिता मोतीलाल ने अपनी मेहनत, लगन और बौद्धिक क्षमता, वकालत की से ये बंगला खरीदा था और फिर कांग्रेस को चलाने के लिए दे दिया। उसमें कांग्रेस का मुख्यालय होता था। 1942 के आंदोलन की रूपरेखा वहीं बनी थी, और 1942 में अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था। उसके बाद 48 में ये दिल्ली लाया गया। तो ये कांग्रेस का इतिहास जो है, कांग्रेस का इसका परिवारवाद का ये आरोप लगाते हैं। हाँ, ये परिवारवाद तो है। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस को, देश को अपना मकान दे दिया कि यहां से आजादी का आंदोलन शुरू होगा, और विरोध छापे पड़ रहे थे, और वही काम आज तक कांग्रेस कर रही है। आज राहुल ने जो कहा है, चेतावनी दी है कि अगर देश जो है पिछले साल आजाद हुआ है, लास्ट ईयर 2024 में ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना,
तो इतने साल के जो सारे काम थे, सारे कानून थे, और मोदी जी आपका चुनाव भी 2014 वाला, प्रधानमंत्री पद की शपथ भी, वो सब असंवैधानिक है। फिर तो जब देश आजादी नहीं था तो उससे पूर्व के किए हुए काम खत्म, उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो आज मोहन भागवत और बीजेपी और ये नड्डा साहब का जो बयान है वो सारा तिलमिलाए हुए हैं ही। स्वाभाविक रूप से है कि राहुल ने जो कहा है उसका जवाब उनके पास किसी के पास नहीं है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या था? दरअसल राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भागवत ने जो कहा वो राजद्रोह के समान है, क्योंकि उनके कहने का मतलब है कि संविधान अवैध है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अवैध है। किसी दूसरे देश में अब तक मोहन भागवत अगर होते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर राजद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता। भागवत का यह बयान हर भारतीय का अपमान है। अब समय आ गया है कि जब इस तरह की बकवास सुनना बंद होना चाहिए। दो विचारों के बीच की लड़ाई है, एक हमारा विचार है जो संविधान का विचार है, और दूसरी तरफ आरएसएस का विचार है जो इसके उलट है। देश में कोई दूसरा दल नहीं है जो भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को रोक सके, सिर्फ कांग्रेस ही इन्हें रोक सकती है, क्योंकि हम एक विचारधारा वाली पार्टी हैं। हमारी विचारधारा कल नहीं आई है, हमारी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा की तरह हजारों साल पुरानी है, लेकिन उसके विपरीत है, उलट है। यह हजारों सालों से आरएसएस की विचारधारा से लड़ती आ रही है। हमारे अपने प्रतीक हैं, हमारे पास शिव हैं, हमारे पास बुद्ध हैं, हमारे पास गुरु नानक हैं, हमारे पास कबीर हैं और हमारे पास महात्मा गांधी हैं। ये सभी प्रतीक हैं जिन्होंने इस देश को सही रास्ता दिखाया। कृपया आरएसएस की विचारधारा का एक प्रतीक बताएं जो आज भारत में पूजनीय है। क्या गुरु नानक आरएसएस की विचारधारा से थे? क्या बुद्ध आरएसएस की विचारधारा से थे? क्या कृष्ण भगवान आरएसएस की विचारधारा से थे? एक भी नहीं, क्योंकि इनमें से हर एक व्यक्ति ने समानता और भाईचारे की लड़ाई लड़ी है। ये बात यहां पर कह रहे थे आज राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ये सारी बातें अंग्रेजी में कही हैं, थोड़ी देर पहले आपने सुनी है, आगे हम उसको रिपीट कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, राहुल गांधी के विचार और उसके बाद तिलमिलाई हुई भाजपा, क्या कहेंगे आप? देखिए, आरएसएस इस साल अपने 100 साल मना रही है। 100 साल की आरएसएस हो जाएगी 2025 में। 1925 में उसकी स्थापना हुई थी और आज ही 2025 में ही कांग्रेस ने अपना मुख्यालय बदला है, उसका पता बदला है। और राहुल गांधी ने मोहन भागवत पर बड़ा हमला किया है और बहुत साफ तरीके से कांग्रेस पार्टी का एक प्राथमिकता जो है स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस को केवल राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक पार्टियों से नहीं लड़नी है, राजनीतिक पार्टी के पीछे जो ताकतें हैं, खासकर आरएसएस, उनसे भी लड़नी है। और मोहन भागवत लगातार कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो उनके मन की बात या उनके आरएसएस की विचारधारा जो है वो सामने आती है। ये कहना कि देश को असली आज़ादी तब मिली थी जब राम मंदिर बना और देश को असली आज़ादी तब नहीं मिली थी जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों को बाहर किया गया था। मैं सहमत हूँ बाकी लोगों से कि ये देश के तमाम सारे फ्रीडम फाइटर्स का और देश के जनता के साथ और देश के साथ जो है वो अपमानजनक बात कही गई है। लेकिन राहुल गांधी का ये बार बार कहना कि आरएसएस के खिलाफ लड़ाई रखनी है और आरएसएस ने संस्थाओं को कंट्रोल में किया हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा है आरएसएस का, ये सब बड़े इशारे हैं और कांग्रेस की लड़ाई को, कांग्रेस की चुनौती को बहुत ही बड़ा बनाते हैं, बहुत गंभीर बनाते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ लड़ाई वाकई जो है वो एक गंभीर लड़ाई है। और सिर्फ चुनाव जीतने से ये लड़ाई नहीं होगी, ये तमाम तरीके से लड़ना पड़ेगा, तब जाके डेमोक्रेटिक संस्थाएं जो है वो अपने स्वरूप में जो उनका काम है, जो संवैधानिक दायित्व है, उसको निभा पाएंगे। अब चुनाव आयोग को देख लीजिए, चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है, या जब तक डीवाई चंद्रचूड़ थे सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहा था, या उनके पहले के चीफ जस्टिस के समय भी
सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहा था, अदालतें कैसे काम कर रही, पुलिस कैसे काम कर रही है। तो आप देखिएगा कि जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो आरएसएस के कब्जे में है, और इसके लिए कांग्रेस को एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए, सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं, चुनावी राजनीति के बाहर भी। राहुल गांधी ऐसा करते रहते हैं, संविधान सम्मान समारोह आयोजन होते हैं, उसमें भी जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन एक बड़ी लड़ाई इनके खिलाफ चलनी चाहिए। जो कांग्रेस का पुराना मुख्यालय था, जो आज सुबह तक था, कल तक था, 24 अकबर रोड 24 अकबर रोड ने कांग्रेस को 4 प्रधानमंत्री दिए। 24 अकबर रोड पे जब इंदिरा गांधी की कांग्रेस में बंटवारा हुआ तो इंदिरा गांधी के फैक्शन का 24 अकबर रोड पे वो आए, और उस वक्त, उस दिन भी जनवरी का महीना था 1978, और उस वक्त भी कांग्रेस विपक्ष में थी। ये संयोग है कि अभी भी जनवरी का महीना है और कांग्रेस अभी भी विपक्ष में है। तो कांग्रेस हो सकता है कि जैसा 24 अकबर रोड कांग्रेस के लिए जो है एक मील का पत्थर था, तो नया दफ्तर भी बनेगा मील का पत्थर, जहाँ से बहुत काम करना है। अच्छी बात यह है कि अब नए दफ्तर में जब वो गए हैं तो जो कांग्रेस के अंदर वैचारिक वैक्यूम था, जो वैचारिक एक कंफ्यूजन था, वो हट चुका है। अब कांग्रेस को ये मालूम है कि किससे लड़ना है और कैसे लड़ना है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस को यह मालूम है कि कैसे लड़ना है, कब लड़ना। हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत जी भी। हेमंत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सीधा जरा आऊं सुनील शुक्ला जी के पास, लेकिन उनसे पहले एक बार राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, मोहन भागवत पर जो हमला बोला है, जरा उसको सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, सुनेंगे। बहुत कुछ हिंदी में आपको बता चुका हूं, अंग्रेजी में आप एक बार सुन लीजिए, और क्यों यहां से इंपॉर्टेंट है राहुल गांधी की ये बात, और ये बार बार हम लोग कह रहे हैं, और ना सिर्फ हम बल्कि ये तमाम जो भी बुद्धिजीवी इस देश का है वो ये बात कहेगा कि आखिर इस देश में जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों के ने बलिदान, कुर्बानियां दी और देश की आजादी के लिए सब कुछ इस देश पर निछावर कर दिया, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कोई भी, उनका अपमान नहीं है क्या? अगर आप यह कहते हैं कि देश 1947 में आजाद नहीं हुआ, देश असल में आजाद 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन के साथ हुआ। क्या खिलवाड़ कर रहे हैं आप? किसी भी हिंदुस्तानी के लिए यह सबसे दुखद सेंटेंस है कि आप कहेंगे कि 1947 में नहीं बल्कि 2024 में देश आजाद हुआ। आप उन सब कुर्बानियों के साथ, उन सब लोगों के साथ आप उनका अपमान कर रहे हैं। शर्मनाक है, शर्म आनी चाहिए आपको। और यही बात राहुल गांधी कह रहे थे, सुनिए जरा राहुल गांधी के शब्दों में। Of a centralized understanding, Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming, right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country, and it has built the success of this country on the foundations of the constitution. सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ सीधा सीधा कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने जो कहा है वो राजद्रोह के समान है, क्योंकि उनके कहने का मतलब है कि संविधान अवैध है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अवैध है। किसी दूसरे देश में अगर अब तक उन्हें अगर ऐसा कहते तो अब तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता। भागवत का यह बयान हर भारतीय का अपमान है। अब समय आ गया है जब इस तरह की बकवास सुनना बंद होना चाहिए। दो विचारों के बीच की लड़ाई है, एक हमारा विचार है
जो संविधान का विचार है और दूसरी तरफ आरएसएस का विचार है जो इसके उलट है। देश में कोई दूसरा दल नहीं होगा जो भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को रोक सके। ये सारी बातें कह रहे थे यहां राहुल गांधी। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? और यहां से भाजपा तिलमिलाई हुई है, तिलमिलाएगी भी, क्योंकि सीधा हमला है भाजपा और आरएसएस के एजेंडे पे। और सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी यहां खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भागवत साहब की बात को ही हम मान लेते हैं कि भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश आजाद हुआ। तो भागवत साहब की संस्था 1925 में बनी। इस आजादी की चिंता उनको कब हुई? किस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम मंदिर के मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया? 80 के दशक में, 61 साल बाद। भारतीय जनसंघ जो उनकी सांस्कृतिक संगठन है, उसने तो अपने कार्यकाल में कभी नाम ही नहीं लिया राम मंदिर का। कोई प्रस्ताव, कोई इतिहास, कोई तथ्य सामने नहीं आता। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। कब प्रस्ताव लेकर के आई है राम मंदिर के मुद्दे को? 1986 या 89 में। इनका एक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, वह कब अपने प्रस्ताव को लेकर के आया? जनसंघ तो कहता रहा कि हमारे एजेंडे में नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी नाम ही नहीं लिया। तो आप 61 साल इंतजार करते रहे आजादी के आंदोलन की लड़ाई के लिए। जो इस देश के लोगों ने कुर्बानियां दी, वो तो उसका तापमान आपने किया ही किया। आप अपने बारे में आत्मावलोकन कीजिए ना, कि अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से ही इस देश को आजादी मिलनी थी, तो उस प्राण प्रतिष्ठा का अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सम्मानित मोहन भागवत साहब के पूर्वजों ने कब शुरू किया? 1925 के स्थापना काल से। कांग्रेस ने, इस देश के नागरिकों ने एक आजादी की लड़ाई लड़ी। लड़ाई कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी किसी को पता नहीं था, लेकिन लड़ते रहे हो। सैकड़ों लोग महीनों सालों साल जेल में सड़ गए। भगत सिंह जैसे लोग फांसी पर लटक गए कि हमको आजादी चाहिए। भागवत साहब कहां थे? भागवत साहब के पूर्वज कहां थे? 60 साल तक अगर आप इंतजार करते रहे कि वो उस अभियान को शुरू करने के लिए, तो आजादी से तो कोई मतलब ही नहीं था आपका। तो न केवल आप उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, एक लंबा संघर्ष चलाया और आजादी हासिल की। किसी भी देश की आजादी उस देश में, आजाद देश में एक संविधान के लागू होने पर मानी जाती है। और आप एक नया कहानी लेकर के आ रहे हैं। हम आप ही की आजादी के मान लेते हैं भाई, चलिए हम मान लेते हैं कि राम मंदिर से ही हमको आजादी मिली है। तो ये चेतना कब आप में जागृत हुई? अगर 60 साल बाद अगर आप ये चेतना जागृत होती है, तो आजादी की बात करने के हकदार आप नहीं है। आप में विवेक ही नहीं है कि कौन इस नागरिकों को किस तरह से एक तरह की आजादी मिले। अगर आप वैचारिक आजादी की ही बात करते हैं, तो भी आप 60 साल बाद सोचेंगे कि हमको वैचारिक आजादी हासिल हो। आप जो इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें आप कब शामिल हुए? नहीं शामिल हुए। जो लोग जिनसे इस देश को आजादी चाहिए थी, आप उनके समर्थन में खड़े थे। आप उनसे तरह तरह की सहूलियतें मांग रहे थे। आप उनकी मदद करने के लिए प्रयास कर रहे थे। और आप इस देश के नायकों को, जिन्होंने आजादी के लिए इतना संघर्ष किया, एक बहुत ही समृद्ध इतिहास हमारा है आजादी के संघर्षों का, उसका आप इस तरह से आप अपमान करेंगे? किस तरह जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जब जो विपक्ष की आलोचना हो रही है, या देश के विभिन्न वर्गों में जो इस बात की आलोचना हो रही है, किसकी बात आप कर सकते हैं? क्या अगर आप चाहते धर्म के आधार पर कोई देश चलेगा? धार्मिक गतिविधियों से देश को आजादी मिलती है। गोया के तो आपके अनुसार से तो तमाम देश अभी पराधीन है। जो दुनिया में जिन्होंने प्रगति के झंडे गाड़ दिए, उनमें तो कोई अब कहीं पर राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई नहीं। किस तथ्य को आप सामने लाना चाहते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप बात कर रहे हैं, जो देश आप बात करते हैं कि आप
इस देश की प्रगति से आपको कोई मतलब नहीं है, इस देश के औद्योगिक विकास से आपका कोई मतलब नहीं है, इस देश के कृषि विकास से आपका कोई मतलब नहीं है, युवाओं में को रोजगार के अवसर मिले इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, दुनिया के पैमाने पर हमारी प्रतिष्ठा बढ़े इससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से तो दुनिया के स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा नहीं बन सकती है, आपकी पहचान नहीं बन सकती। किसकी बात कर रहे हैं आप? सवाल इस बात का है। तो यह बयान, इस बयान को देश की जनता कैसे स्वीकार कर सकती है? और अगर आप इस बयान को दे रहे हैं तो इस बयान के पीछे न केवल आजादी के आंदोलन को, आजादी के नायकों को अपमानित करना है, बल्कि आपके द्वारा एक नए एजेंडे को शामिल करना है। आप उन चीजों आप यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आजादी की लड़ाई में आपकी भूमिका क्या थी। अब लोग इस बात को जानेंगे कि आपकी आजादी की लड़ाई में आपकी भूमिका क्या थी। कोई भूमिका आपकी नहीं थी और आप पूरे के पूरे उस आंदोलन को अपने उन लोगों के हाथों से छीनना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। पहला सवाल तो अभी पैदा होगा कि जो भी आप वजह मानते हो आजादी के लिए, तो उस आजादी के संघर्षों के लिए आप कहां उतरे? तो अगर आपने कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, देश के लिए आजादी का सपना नहीं देखा, तो फिर आप जिन लोगों ने सपना देखा, जिन लोगों ने उपलब्धियां हासिल की, जो संवैधानिक तरीके से इस एक आजाद हिंदुस्तान की स्थापना की, एक संविधान दिया, उनका तो अपमान कर रहे हैं आप। और इसे इस देश के आम नागरिकों का अपमान है। और आपका यह बयान बताता है कि देश के संविधान के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं। आपका यह बयान बताता है कि देश के संविधान के माध्यम से देश के नागरिकों को मिले हुए अधिकारों के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं। समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्ग है, उस व्यक्ति के सशक्तिकरण के प्रति कितने आप संवेदनशील हैं। क्योंकि आप संविधान की बात ही नहीं करते। संविधान की बात करेंगे तो फिर आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि देश को आजादी 1947 में नहीं मिली। यह देश के संविधान के प्रति तिरस्कार का भाव रखने वाला व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है। और आपने इसको साबित किया। जब देश आजाद हुआ तब संविधान को लेकर के आपने तमाम तरह की टीका टिप्पणियां की, नकारात्मक टीका टिप्पणियां की। संविधान को स्वीकार करने को लेकर के आपने तमाम तरह के बहस किए। मुख्यालय पर आपने राष्ट्रीय झंडे को फहराने के लिए सालों लगा दिया, आपने बहुत लंबा समय आपने लिया। जिस किसी ने भी आपके भवन पे तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की, उनके खिलाफ तरह तरह की कानूनी कार्रवाई आप लोगों ने कराई। तो आपने संविधान को स्वीकार नहीं किया। जब संविधान लागू हुआ उस स्थिति को आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आजादी के संघर्ष के दौरान जो लोगों ने प्राणाहुति दी, जो संघर्ष किया, उसको पहचानने के लिए आप तैयार नहीं। उनके प्रति आपके मन में कोई श्रद्धा का भाव नहीं है। और आप जो आप बात कर रहे हैं वो उससे तो कोई देश बनता नहीं। और अगर आप उसी देश को, अगर उस घटना को देश का आजादी का दिन मान लिए होते, तो कम से कम आप संघर्ष करते दिखाई देते। 1925 से आप संघर्ष करते जी, बिल्कुल। तो आपने कभी नाम भी नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही कि राम मंदिर का आंदोलन हमारे एजेंडे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ ने तो कभी नाम ही नहीं लिया। और महात्मा गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता हुए आजादी के आंदोलन के। उनके अगर ऐतिहासिक तथ्यों को देखा जाए, उन्होंने भी कभी इसका उल्लेख नहीं किया। तो ये तो केवल और केवल आजादी की लड़ाई को अपमानित करने की कोशिश है। राष्ट्र के नायकों के प्रति एक अपमानजनक रवैया है और संविधान के प्रति एक तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी तक तो ट्रोल आर्मी के लोग, भाजपा के नुमाइंदे, ऐसे लोग, मूर्खों की जो जमात है वो ये बात करती थी। लेकिन अगर अब मोहन भागवत ऐसी बात करेंगे तो बात तो आगे निकलेगी ही, बात आगे बढ़ेगी। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि अभी तक आप लगातार आजादी के उन दीवानों को, परवानों का, उन कुर्बानियों का, उन शहादत देने वाले लोगों का अपमान करते रहे। आखिर कब तक ये देश बर्दाश्त करेगा? और किसी न किसी को आवाज तो उठाना ही था। आज राहुल गांधी ने इसकी आवाज उठाई है। जरा आना चाहता हूं हेमंत जी आपके पास, आपसे समझना चाहता हूं इसके क्या मायने हैं। राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, लेकिन सियासी मायने इसके क्या हैं? ये बात कितनी दूर तक जाएगी? हेमंत कुमार जी। जी धन्यवाद। मोहन भागवत जी ने जो कहा है, मैं उसको इस रूप में देखता हूं कि ये वही लोग हैं जो इस देश में
संसद के जरिए इस देश को नहीं चलाना चाहते हैं। संसद जो लोकतंत्र का प्रतीक है, ये धर्म संसद के जरिए देश को चलाना चाहते हैं, जिसमें तमाम तरह के पाखंडी, तमाम तरह के व्यभिचारी ऐसे लोग भरे पड़े हों जिनका लोकतंत्र और संविधान से कोई लेना देना नहीं। ये जब कहते हैं कि हम ये आजादी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिली, तो आप ये अलहदा मामला नहीं है, बल्कि इसको जोड़ करके आप देखिए। जब कोई कहता है कि 2014 के बाद आजादी मिली, ये कौन लोग हैं? ये कहते हैं, ये गांधी की हत्या को गांधी का वध बताते हैं, ये आम्बेडकर का तिरस्कार करते हैं, ये नेहरू का तिरस्कार करते हैं, ये महात्मा गांधी का तिरस्कार करते हैं, और आजादी की पूरी विरासत उसका तिरस्कार करते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये उन तमाम लोगों के खिलाफ है जो इस देश में लोकतंत्र और संविधान चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके खिलाफ है ये। जिन्होंने एक नया संसद भवन क्यों बनवाया, उसकी क्या जरूरत थी? एक प्रतीक कर रहे थे ना, एक ऐसा प्रतीक कर रहे थे जिसमें सेंगोल हो, राजशाही सामंतशाही का प्रतीक हो, क्योंकि इनके पास अपनी कोई विरासत नहीं है। इनके पास कोई स्वतंत्रता के आंदोलन की विरासत इनके पास नहीं है। इनके पास विरासत क्या है? इनके पास विरासत है माफी मांगकर जेल से आने की विरासत है। इनके पास विरासत है आजादी की लड़ाई की मुखालफत करने की विरासत। इनके पास है विरासत आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ जासूसी करने की विरासत। इनकी विरासत है जो संविधान है उसका तिरस्कार करने, जो संविधान निर्माता है उन लोगों का तिरस्कार करने। इन लोगों ने तो उस समय कहा था ना, जब नेहरू जी ने कहा कि ये लोग 200 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम 2000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं इस देश को। तो राजीव जी, यह लड़ाई सिर्फ चुनाव की लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है। और मैं मानता हूं कि इस देश में अगर कोई हेड ऑन कर रहा है तो वो राहुल गांधी है, जो इस विचारधारा को लेकर के लड़ रहे हैं। क्योंकि बाकी लोग फिर राजनीतिक हेमंत कुमार जी का फायदा होगा और कहां नुकसान होगा। और यह इस तरह से जो लोग राजनीतिक प्रबंधन के चक्कर में लगे हुए हैं, वो वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं कि आरएसएस इस देश के लिए खतरा है, और ये लंबे समय से कह रहे हैं, तो वो जानते हैं कि हाँ, हमको चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चुनावी नुकसान और नफा को किनारे लगा करके ये बात करनी पड़ेगी। आज इस देश की यही मांग, क्योंकि ये लोग जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, मोहन भागवत जब हिंदुओं को एकजुट हो जाने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जब इस तरह की बातें करते हैं, किसी सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि यह देश बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय कहते हैं कि हमको भगवान से प्रेरणा मिली तब मैंने ये फैसला लिखा। तो क्या ये इन तमाम चीजों को आप जोड़कर देखिए, क्या कहां ले जाना चाहते हैं जी। ये तमाम लोग हैं जो इस देश को भगवान भरोसे ले जाना चाहते हैं, जहां बाकी लोगों के हक अधिकार, देश की तरक्की, यहाँ के गरीबों मजलूमों को कैसे सुविधा संपन्न और अधिकार संपन्न बनाया जाए, ये नहीं करना है। मैं पूछता हूं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो सवाल है, धर्म की सत्ता ने इस देश में कितने लोगों को साधन संपन्न और अधिकार संपन्न बनाया? मुट्ठी भर गिने चुने लोगों को। बाकी लोगों को क्या मिला? बाकी लोगों को ने जो कुछ हासिल किया है वो इस देश में संविधान और लोकतंत्र के जरिए हासिल किया है। संविधान ने उनको यहाँ आगे बढ़ने का, प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, प्रतिनिधि संस्थाओं में जाने का अधिकार दिया, नौकरी चाकरी शिक्षा का अधिकार दिया। ये सारे अधिकार किसी धर्म की सत्ता ने नहीं दिए। तो ये धर्म की सत्ता के लिए क्यों बेचैन है? क्यों ये ऐसे लोगों की जो जहर उगलते हैं, ऐसे धर्म संसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनको जेल में नहीं डाला जाता है? ये तमाम आतंकवाद, मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं कि यह एक आतंकवादी गिरोह है जिसने गांधी की हत्या करवाई, उस साजिश में शामिल रहा, और इनके खिलाफ निर्मम लड़ाई की जरूरत है। अब ये इस देश में सिर्फ चुनावी लड़ाई का मतलब नहीं रह गया हुआ है, ये एक राजनीतिक लड़ाई है। और इस लड़ाई में
बहुत लोगों को अब जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा लंबे समय तक। उसमें कोई भी हो सकता है, राहुल गांधी को जाना पड़ सकता है, इस देश के तमाम लोगों को, हम आपको जाना पड़ सकता है। ये वक्त आ गया हुआ है और इस देश का मीडिया, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, उसने इस देश के लोगों के खिलाफ झूठ और आडंबर का एक तरह से युद्ध छेड़ रखा है और वो सरकार के इस फर्जी एजेंडे को बचाने के लिए, उनके पक्ष में फर्जी नैरेटिव गढ़ने के लिए वो तमाम तरह के उपाय करते हैं। तो ये एक ऐसा वक्त है जिसमें राहुल गांधी अगर कुछ बोल रहे हैं इनके खिलाफ तो उसको समझने की जरूरत है। आप राहुल गांधी से, कांग्रेस से कितना भी असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि यह एक विचारधारा की लड़ाई है जिसमें ये कहां ले जाना चाहते हैं देश को, एक अंधेरी सुरंग में ले जाना चाहते हैं या उस वहां से बाहर ले जाना चाहते हैं। जिन लोगों ने आजादी का सपना देखा, जिन लोगों ने आजादी का सूरज देखने के लिए कुर्बानी दी, असंख्य लोगों ने, गुमनाम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, उनको आप लानत भेज रहे हैं एक तरह से कि आजादी तब मिली जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये कैसी विडंबना है। यह कोई पागल लोग नहीं बोल रहे हैं, यह कोई ऐसा नहीं, कोई बिगड़ैल नहीं लोग नहीं बोल रहे हैं, यह बिल्कुल सुचिंतित ढंग से कहा जा रहा है। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि इनको धर्म की सत्ता चाहिए, इनको लोकतंत्र की सत्ता नहीं चाहिए। ये बुनियादी अंतर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लोकतंत्र की सत्ता या धर्म की सत्ता, ये आपको चुनना है और देश लोकतंत्र की सत्ता को 1947 में चुन लिया था और उसी के आधार पर संविधान बना और संविधान के हिसाब से ये देश चलता रहा। लेकिन अब यहाँ एक द्वंद्व चल रहा है। 2014 के बाद से आज़ादी मिली, ये बार बार फैलाने की कोशिश नए जो युवा हैं, जो जेनजी हैं, उनके सामने ये बातें रखी गई कि आज़ादी तो उस समय नहीं मिली थी। अब और इस बात को अब आरएसएस के जरिए भी आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, जरा ये भी समझें। पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, आखिर क्या जरूरत है, क्यों? राजीव जी, अब देखिए इसकी जरूरत तो पड़ेगी और जरूरत ये है कि अब आरएसएस अब खुलकर अपने असली स्वरूप में सामने आ रहा है। आजादी के बाद लगातार वो अपने को ढकता छुपाता रहा और बार बार गुलाटियां मारता रहा और असली उसका जो चाल चरित्र चेहरा था उसको छुपाता रहा। कभी किसी के पीछे छिपता था, कभी किसी के पीछे छिपता था। लेकिन अभी अच्छी बात है कि मोहन भागवत खुलकर आ रहे हैं, खुलकर देशद्रोह कर रहे हैं। क्योंकि आरएसएस की कभी भी इस देश में तो आस्था रही ही नहीं। देश की आज़ादी की लड़ाई में ये गायब रहे, अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, जिस तरीके के आरोप हैं इनके ऊपर सब। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब आरएसएस खुलकर जो देशद्रोह कर रहा है और ये चीजें अब लोगों के सामने आ रही हैं कि आरएसएस किस हद तक जा सकता है और इनकी असली विचारधारा क्या है, ये क्या है। तो मोहन भागवत ने, राजीव जी जो कहा, अच्छी बात उस पर यह भी है कि राहुल गांधी ने अब सीधा सीधा आर पार का हमला बोला है और यहां तक कह दिया कि मोहन भागवत को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री तो गिरफ्तार मोहन भागवत तो नहीं होंगे, लेकिन हो भी सकते हैं। क्योंकि अगर मोहन भागवत मोदी जी को हटाने के लिए षड्यंत्र करेंगे कोई, तो मोहन भागवत भी गिरफ्तार हो जाएंगे, भले इसी बहाने हो जाए। तो ऐसा नहीं कि मोहन भागवत गिरफ्तार नहीं हो सकती, लेकिन वो तभी होगा जब मोदी जी को लगेगा कि अब मोहन भागवत जो है वो सीधे सीधे सरकार कब्जा करना चाहते हैं, मोदी जी को हटाना चाहते हैं, तो तब गिरफ्तार होंगे। लेकिन अभी जो है राजीव जी, ये एकदम खुलकर सामने आ गया है कि अब लड़ाई आर पार की है। अब मोहन भागवत अगर खुलकर राजीव जी कह रहे हैं तो इसका मतलब आरएसएस को लगता ही है कि अब शायद वो इस स्थिति में आ गया है कि अब वो देश के तमाम संस्थाओं पर उसके कब्जे हो चुके हैं। जैसा कि राहुल गांधी पहले भी आरोप लगाते रहे कि भाई सब सारी संस्थाओं पे जो है वो आरएसएस का कब्जा मतलब हो चुका है। तो उन्हें लगता है कि अब सारी संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है, यहाँ तक कि जुडिशरी पर भी कब्जा हो चुका है। अगर कोई जज खुलकर कह रहा है कि भाई आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, हाईकोर्ट का जज, और एक जज जो है जम्मू कश्मीर का जब चीफ जस्टिस हुआ करता था तो वो कहता था कि सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए संविधान से, वो सुप्रीम कोर्ट में जज बना हुआ बैठा है। तो जब ऐसे लोग पहुंच चुके हैं न्यायपालिका में भी, तो अब आरएसएस को लगता है कि अब बिल्कुल सही समय आ गया है कि जब एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री है और जुडिशरी से लेकर और शिक्षा व्यवस्था तक सब जगह आरएसएस के लोग घुस गए हैं, तो अब इस देश की जो असली लड़ाई थी और आइडिया ऑफ इंडिया था उसको कुचला जा सकता है। और आरएसएस का जो नाजीवाद है, जो फांसीवाद है और इनका जो मूल चरित्र है जो हिटलर से लेकर आए थे, उसको अब यहाँ लागू किया जा सकता है। तो राजीव जी, ना तो इनकी विचारधारा देशी है, ना इनका चाल चरित्र चेहरा देशी है, ना इनका गणवेश देशी है। ये सब जो लेकर आए हैं वो हिटलर और मुसोलिनी से लेकर आए हैं। तो अब ये हिटलर और मुसोलिनी का देश बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और उस तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
आप सही कह रहे हैं। देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है, ये सब कुछ आपको समझना है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों आखिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को यहाँ तक, अभी तक आरक्षण खत्म कर देंगे, कभी कुछ और, कभी खुद नरेंद्र मोदी को समझाते हुए नजर आते हैं, संविधान के पक्ष में कभी बोलते हैं, लेकिन अब इस बार जो बात वो कह रहे हैं असली आज़ादी की। अब मोहन भागवत के बयान बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं शकील अख्तर जी, बहुत कंट्रोवर्शियल, कभी कुछ कभी कुछ, एक बात पर वो टिके नहीं रहते हैं, ये हम लोग पिछले कई सालों से जान रहे हैं। ऐसे में मोहन भागवत के इस बयान के क्या मायने हैं? राहुल गांधी ने सुबह सुबह आखिर इतना कॉग्निजेंस क्यों लिया, क्यों इस बात की महत्ता को रखते हुए आगे बढ़ाया कि अगर वो किसी और देश में होते तो अब तक मुकदमा झेल रहे होते और जेल में होते? देखिए राजीव जी, मोहन भागवत ने क्यों कहा, आरएसएस ने क्यों कहा, बड़ा अच्छा सवाल है ये, और लोग सब इसको जानना चाहते हैं। जो हमें लगता है वो ये है कि देश की आज़ादी की लड़ाई जो है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उससे लोगों का ध्यान हटाए बिना बीजेपी या आरएसएस अपनी जगह नहीं बना सकती। उसे स्पेस चाहिए, और वो सारा स्पेस जो है देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का, देश के लिए कुछ करने के जज्बे का, वो सारा का सारा कांग्रेस के पास है। तो ये जो है अपनी जगह बनाने के लिए कांग्रेस की जो जगह है, जो आज़ादी की लड़ाई की है, जो देशभक्ति की है, जो प्रगतिशीलता की है, लोगों के लिए कुछ काम करने की है, वो छीनना चाहते हैं। कांग्रेस की, नेहरू की लकीर को छोटा करने के लिए ये उसको घिसने की कोशिश करते हैं। जब तक ये नहीं कहेंगे कि आज़ादी तो सच्ची थी नहीं। आपको तो ये भी याद है कि इन्होंने ही कहा था कि 99 साल के पट्टे पर मिली है, अंग्रेजों से 99 साल के पट्टे पे नेहरू ने आज़ादी ली है। ये इस आज़ादी को झूठी साबित करने के लिए वो हर कोशिश करते रहे हैं, और पहली बार नहीं कर रहे, हमेशा से करते रहे हैं वो कोशिश। इनकी शाखाओं में, इनके आपस के जो चर्चाएं होती है, उनमें यही सब सिखाया जाता है। और फिर होता क्या है? होता यह है कि बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा कठोर बोल रहा है वही हमारा असली चेहरा है, और उन्हें दूसरा चेहरा अपेक्षाकृत मुखौटा लगने लगता है। वाजपेयी के लिए गोविंदाचार्य ने बोला था कि ये तो मुखौटे हैं हमारे। आप कह नहीं सकते किसी दिन कोई माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कह दे कि ये तो मुखौटे हैं, असली चेहरे तो मोहन भागवत हैं। मोहन भागवत ने जो बात बोली है वो तो नरेंद्र मोदी आज तक नहीं बोल पाए। वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। उनके लिए जो सच्चाई है, जो उनका उद्देश्य है या लक्ष्य है, वो क्या है? वो है यथास्थितिवाद, वापस पुरानी स्थिति में देश को ले जाने वाली बात। वे जो है देश को प्रगति की तरफ ले जाना नहीं चाहते, वो वापस देश को मनुवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो राहुल ने कहा है, मनुवादी व्यवस्था। इसीलिए आज तेजस्वी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि भाई ये बताओ कि दलित, आदिवासी, पिछड़े ये कब आजाद होंगे? तुम कह रहे हो कि हमारा देश हुआ है 2024 में, मगर पिछड़े और दलित कब आजाद होंगे? और राहुल ने भी कहा कि दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का आप सम्मान नहीं करते हैं। तो झगड़ा तो यही है कि ये देश के अंदर राहुल गांधी क्यों करते हैं जाति गणना की बात। उन्होंने बड़ा साफ साफ 88% का एक आंकड़ा और ब्रेकअप लाके सामने रख दिया। 88% इसीलिए करते हैं वो कि 88% लोगों पर 12% लोगों का शासन। वो यही चाहते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय की लड़ाई यही तो है ना। सामाजिक न्याय की लड़ाई क्या है कि न्याय जो है सामाजिक रूप से मिले, समाज उनका सम्मान करे। ये आर्थिक न्याय की लड़ाई नहीं है, दोनों चीजें डिफरेंट हैं। आर्थिक न्याय अलग है, सामाजिक न्याय अलग है। और आरक्षण जो है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई का हिस्सा है। वो सत्ता में हिस्सेदारी का संघर्ष है। वो इस बात का नहीं है कि सिर्फ हमें नौकरी में हिस्सा मिल जाए, खाली आर्थिक हिस्सा मिल जाए खाली।
ये सारी बातें राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं और राहुल गांधी अब इसको एक विचारकी दे रहे हैं, एक थॉट दे रहे हैं और ये थॉट जो है अब आरएसएस से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आरएसएस सोचती थी कि बौद्धिकी वही देते हैं, खाली उनकी बौद्धिकी होती है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि ये काम तो नेहरू कब से करते थे। नेहरू कहते थे कि लास्की को पढ़ो जाके अपने नेताओं से, वो पॉलिटिकल क्लासेस लगवाते थे लोगों की, और यही काम अब राहुल गांधी अपने भाषणों के जरिए कर रहे हैं। तो इसलिए जो आपका सवाल है कि आरएसएस को जरूरत क्यों पड़ी, आरएसएस को जरूरत इसलिए पड़ी कि आरएसएस जो सोचती थी कि 11 साल के मोदी के शासन के बाद में जो उसकी प्रतिगामी व्यवस्था है, जो पीछे लौटने का रास्ता है, वो सुगम हो जाएगा। अब उन्हें लग रहा है कि राहुल जो है उसके सामने मजबूती से खड़े हो गए हैं और राहुल उन्हें पीछे नहीं जाने दे रहे हैं। राहुल संविधान की बात करते हैं। आज राहुल ने क्या कहा? राहुल ने सबसे बड़ी बात यही कही, तो क्या ये संविधान जो हमारा है वो भी असंवैधानिक हो गया? 1950 में लागू संविधान और आप कहते हो 2024 में आजादी, तो 1950 से लेके 2024 तक के किए गए सारे काम जो है वो असंवैधानिक हो गए। असली लड़ाई राहुल ने बिल्कुल सही मुद्दा उठा के रखा हुआ है, वो इसीलिए बार बार संविधान दिखाते हैं। असली लड़ाई संविधान की ही है और दलित, आदिवासी, पिछड़े इन लोगों को समझने की है। जब तक ये नहीं समझेंगे तो ये वापस गुलामी की तरफ जाएंगे। बहुत सही कह रहे हैं राहुल, बहुत सही कह रहे हैं तेजस्वी, बहुत सही कह रहे हैं अखिलेश यादव। वो समझ रहे हैं इस बात को कि अगर जरा भी कमजोर पड़े तो देश में वही व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी, आरक्षण फौरन तत्काल खत्म हो जाएगा। आधा तो अभी कर दिया उन्होंने कि नौकरी ही नहीं है सरकारी। जब सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको आरक्षण कहां से मिलेगा? सारी प्राइवेट नौकरियां कर दी है, प्राइवेट में आरक्षण मिलता नहीं है। तो इसलिए जो है ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और राहुल ही एक ऐसे आदमी है। देखिए अभी भी हमको थोड़ा वैसा है कहना, अच्छा नहीं लगता और कहना पड़ रहा है, अभी भी जो है देश का दलित, आदिवासी और पिछड़ा राहुल को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। राहुल सिर्फ उनके लिए लड़ रहे हैं। अभी सीलापुर में क्या कहा उन्होंने, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं। उन्हें मालूम है खतरनाक बात है, बोलने का मन नहीं करता। उन्हें मालूम है कि मैं इनके निशाने पर हूं। सबको मालूम है ये बात। इस देश के, इस परिवार के दो लोगों की जान किन लोगों ने ली है? उन्हीं लोगों ने ली है जो देश में व्यवस्था को सही तरीके से नहीं चाहते हैं। खुद सरदार पटेल ने कहा था, गुरु गोलवलकर से आरएसएस के प्रमुख थे, कि आपके द्वारा फैलाए गए हिंसा के वातावरण से देश का सबसे बड़ा हिंदू शहीद हो गया। महात्मा गांधी, किसने जान ली थी उनकी? यही तो कहा था सरदार पटेल ने, और उन्होंने उस पे से प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था सरदार पटेल ने कि मैं नहीं हटाऊंगा। तो ये लड़ाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आरएसएस सिर्फ इसलिए कह रहा है कि आरएसएस देश को पीछे ले जाना चाहता है सामाजिक रूप से, जहां पे दलितों का काम वही हो जो दलित करते रहे हैं, पिछड़ों का काम वही हो जो पिछड़े करते रहे हैं, आदिवासियों का काम वही हो। राहुल इस बात को नहीं मानते। राहुल कहते नहीं, इन सबको समान अवसर, ये भी उन्होंने भी राहुल ने कहा, सीलमपुर का भाषण में उनको उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा सबको समान अवसर, वो बड़े सपने देखने का अधिकार होना चाहिए। तो बड़े सपने देखने का अधिकार मोहन भागवत नहीं देना चाहते, आरएसएस नहीं देना चाहता। वो कहता है कि अपने उसी दायरे में रहो, आप उस दायरे से बाहर निकलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। वो एक सीमित दायरा है आपका, उसी में सोचो, उसी में जियो, उसी में रहो। राहुल कहते नहीं, आपको भी उतना ही अधिकार है जितना मुझे है या देश के किसी भी आदमी को है। ये लड़ाई जो है अब बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे आ गई है। और फिर हम इस बात को कहेंगे कि देश के दलित, आदिवासी और पिछड़े को जरूरत है कि वो राहुल को समझे। नहीं समझेंगे तो उनका नुकसान होगा। राहुल तो एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कमिटेड आदमी होता है, जिसका कन्विक्शन होता है, वो कोई समझौता नहीं करता। उसे इस बात से ही फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बात कितने लोग मान रहे हैं, कितने नहीं मान रहे हैं, कितने सुन रहे हैं, कितने नहीं सुन रहे। राहुल अपनी बात कहते रहेंगे, क्योंकि आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। किसके प्रति? अपने मूल्यों के प्रति, वैल्यूज के प्रति। और उनकी वैल्यूज हैं दलित, पिछड़ा, आदिवासी, उनके अधिकार। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी मसले पर चिराग पासवान ने भी बयान दिया है। चिराग पासवान के बयान को सुनाना चाहता हूं कि क्या कुछ कहा है। उनसे जब पूछा गया कि मोहन भागवत ने यह कहा है, राहुल गांधी ने ऐसा कहा है, और जानते हैं आप चिराग पासवान मंत्री हैं, सरकार में हैं,
और काफ़ी अभी जूझ रहे हैं। उधर बिहार में आज दही चूड़ा का भोज अभी 3 दिनों से चल रहा है, उस पर आज चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन महत्वपूर्ण है कि ये एक दही चूड़ा हो, कुछ और हो, कोई सियासी समीकरण हो, उन सब पे हम रोज चर्चा करते हैं, लेकिन जब देश की आज़ादी की बात हो, जब देश के संविधान की बात हो, जब देश का लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे, तो सब कुछ छोड़ के इस पर तो चर्चा बनती है दोस्तों। और आज आखिर क्यों ये बात मोहन भागवत बार बार कह रहे हैं, मोहन भागवत के बयान कभी ऐसे कभी वैसे क्यों रहते हैं, उन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। और राहुल गांधी कहां खड़े हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन पहले चिराग पासवान को सुनिए क्या कह रहे हैं इसी मसले पे। की भावना का मैं सम्मान करता हूं। यकीनन राम मंदिर का बनना एक बहुत बड़ी सनातन पे विश्वास रखने वाले लोगों की जीत, लंबे समय से मांग रही लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, सब दिया इसको लेकर, और उसके बाद एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोग सफलता हम लोगों को मिली। न्यायालय का भी इसमें विशेष योगदान रहा और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो इच्छा शक्ति रही जिसकी वजह से ये संभव हुआ। पर मुझे लगता है साथ में हम लोगों को कतई उस बलिदान को नहीं भूलना चाहिए और उसका भी सर्वोच्च सम्मान अपने मन में, अपने मस्तिष्क में हम लोगों को रखना चाहिए। जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी, तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों की भावना, उनकी कुर्बानियों को हम लोग को सम्मान देने की जरूरत है। ऐसे में मुझे लगता है इन दोनों विषय की तुलना की ही नहीं जा सकती है। राहुल गांधी ने एक सवाल किया है, कहा है कि अगर किसी और मुल्क में ऐसे बयान दिए जाते तो उनको पकड़ लिया जाता, कैद में डाल दिया। देखिए, राहुल जी तो कई बार क्या बातें कहते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो समझ के परे है। इनके समझ के परे राहुल की बात नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये बात जरूर समझ में आ गई कि हाँ जो जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनका सम्मान होना चाहिए। प्रशांत टंडन जी, आपको क्या लगता है? सवाल वही है प्रशांत जी कि मोहन भागवत आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सवाल तो हाँ, ये सवाल है कि इतना उतावलापन पिछले कुछ वर्षों में आरएसएस के क्यों है, क्यों बार बार बीजेपी के नेताओं के तरफ से संविधान खत्म करने की बात होती है। चुनाव में भी ये मुद्दा बन गया था। ये ऐसा क्या है, संविधान ने ऐसा क्या कर दिया पिछले 7 दशकों में कि जो इतनी परेशानी है? क्या इससे आरएसएस का कोई मंसूबा वो विफल होता दिखाई दे रहा? हाँ बिल्कुल। संविधान ने क्या किया है? अभी संविधान की यात्रा बहुत आगे बाकी है, लेकिन जितना कुछ भी अचीव हुआ है, जितना कुछ भी हासिल हुआ है, वो बहुत बड़ा है। और एक नया मिडिल क्लास इस देश में बना है। देखिए, मिडिल क्लास जो होता है राजीव जी, वो बहुत कुछ चीजें तय करता है। वो लिखता है, पढ़ता है, विमर्श पैदा करता है, बहस चलाता है, फिल्में बनाता है। उसके लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वकील होते हैं, जज होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं। तो ये मिडिल क्लास एक नया वर्ग बनाता है जिसको व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। वो व्हाइट कॉलर अब बहुत धीमे धीमे समावेशी होता जा रहा है। समावेशी होने का मतलब कि जो उसमें केवल और केवल कुछ एक सीमित वर्ग का वर्चस्व था, वो अब थोड़ा उसका जो पिरामिड का बेस है वो बड़ा हो रहा है। उसमें तमाम वो वंचित समाज जिनको अतीत में पिघला हुआ शीशा डलवा देंगे, गांव के बाहर कर देंगे, ऐसी बातें होती थी। शोषण होता था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, एक गरिमामय जीवन का अधिकार नहीं था। और आज भी हिंदुस्तान में ऐसा बहुत जगह है, देखा जा सकता है। वो सब लोगों ने पढ़ाई की, आरक्षण का लाभ मिला, एक व्यक्ति एक वोट का बराबर समान अधिकार मिला। ये परेशानी है आरएसएस की तमाम वो लोग जिनको मनुस्मृति के हिसाब से हाशिए पे होना चाहिए था, अब वो मुख्य धारा में आ गए और नए समाज की गणना कर रहे हैं, नया विमर्श पैदा कर रहे हैं। आज आप देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर को लेकर एक बात कही अमित शाह ने, जो कि बहुत ही अपमानजनक थी, उसको लेकर पूरे देश में शोर मच गया। ये उसका प्रमाण है कि एक बहुत बड़ा वर्ग
अब जो व्हाइट कॉलर में आ गया है, जो मिडिल क्लास बन गया है, ये परेशानी आरएसएस की है। वो इसको अब घड़ी की सुई को पीछे करना चाहते हैं। घड़ी की सुई पीछे नहीं होती है। मोहन भागवत जी लटक भी जाए, पूरी आरएसएस भी लटक जाए घड़ी पे, घड़ी की सुई आगे ही बढ़ती है। तो ये कोशिश है उनकी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, पहली बार कांग्रेस ने भी आरएसएस को पॉलिटिकल एजेंडा अपना बनाया है। ये भी बहुत बड़ी परेशानी है मोहन भागवत को। अभी तक आरएसएस बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको कहते हैं कि उसका फायदा उठाती थी, कि मेन जो उनका जो वो फ्रंट था वो बीजेपी, और बीजेपी के खिलाफ मीडिया भी लिख रहा है, मोदी जी भी बोल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी बोल रही हैं, लेकिन पीछे से आरएसएस जो बीजेपी को कंट्रोल करती वो बची रहती थी। आरएसएस ने, वो राहुल गांधी ने वहां उनको पकड़ा है जी। तो वो जितना बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं उतना ही वो आरएसएस के खिलाफ भी बोलते हैं। ये परेशानी आरएसएस को है कि वो देश की पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लड़ाई के विमर्श में एक प्लेयर बन गया है, जो अभी तक नहीं था। इसलिए मोहन भागवत परेशान है। और एक जेपी नड्डा की बात मुझे समझ में नहीं आई। राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन्होंने ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि डीप स्टेट राहुल गांधी के साथ मिला हुआ है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष डीप स्टेट की बात कर रहे हैं और डीप स्टेट राहुल गांधी के साथ मिलकर साजिश कर रहा है मोदी जी के खिलाफ। बड़ा अजीब सा बयान लगा। तो सरकार कैसे चल रही है, सवाल उठेगा। फिर मोदी जी के लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर डीप स्टेट जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़ा है। क्योंकि अभी तक वो आरोप लगा रहे थे कि अमेरिका का डीप स्टेट जी, अब उन्होंने भारत की डीप स्टेट को लिया है साथ में। तो ये बड़ा मुझे आश्चर्यजनक लगा जेपी नड्डा की तरफ से। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात यहाँ और भी महत्वपूर्ण है सुनील शुक्ला जी, कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी पार्टी इस मामले में तैयार है। मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को जरा सुन लेते हैं दोबारा। शुरुआत में आप लोगों को सुनाया था, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहुल गांधी जो बात कह रहे थे उसी बात को मल्लिकार्जुन खड़गे आगे बढ़ा रहे हैं। यानी पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, जैसे प्रशांत टंडन जी कह रहे थे। और कोई पार्टी अगर सीधे आरएसएस के इन मसलों को, आरएसएस के इन बयानों को, आरएसएस प्रमुख के अगर बयान को पर हमला कर रही है कोई पार्टी, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय की सियासत जो है आप कुछ और दिशा में जाते हुए देखेंगे। इसलिए जरूरी है यहां समझना कि मोहन भागवत ने आखिर ये बातें क्यों कही हैं। मोहन भागवत को आज की तारीख में आजादी की बात, उसमें भी डिफरेंशिएट करके कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन के साथ असली आजादी मिली, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन सुनिए पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को। जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आजादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आजादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आजादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आजादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आजादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आजादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो
आजादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आजादी के लिए मरे हैं, आजादी के लिए ठोकरें खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंडम करता हूं, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। सीधी एक चेतावनी भी है यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मोहन भागवत को, लेकिन जरूरत क्यों आन पड़ी मोहन भागवत को ऐसा बयान देने की? सुनील शुक्ला जी। को लेकर के विमर्श बढ़ेगा तो मोहन भागवत साहब को इस तरह के बयान देने पड़ेंगे। अगर समाज के वंचित वर्ग में, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में इस बात की चेतना जागृत होगी कि संविधान के द्वारा मिले गए अधिकारों के साथ समझौता किया जा रहा है, तो मोहन भागवत साहब को इस तरह के बयान देने होंगे। सवाल यह है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में या भारतीय जनता पार्टी ने जिन समर्थक वर्गों को तैयार किया है, वो किस आधार पर तैयार किया है? इन्हीं आधारों पर तैयार किया। उसने कोई संविधान की दुहाई दी नहीं, संवैधानिक रूप से एक मजबूत सरकार चलाने की बात तो की नहीं, संवैधानिक प्राविधानों का एकदम उसके शास्त्रीयता के साथ सबसे लागू करने की बात तो की नहीं। राष्ट्रवाद का नारा, हिंदू सनातन का नारा, धार्मिक ध्रुवीकरण में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति एक तरह की नाराजगी, इसी तरह का तो माहौल बनाया है जी। और अगर आप इस तरह की बात करेंगे और इस पर अपनी राजनीति बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि संविधान के प्रति कोई आपकी आस्था नहीं होगी। संविधान के प्रति संघ ने, मोहन भागवत साहब ने या मोहन भागवत साहब के पूर्वजों ने कब सम्मान प्रदर्शित किया है? कब इन्होंने सर माथे पर उसको रखा? आप याद कीजिए 2001 की घटना को, जब महाराष्ट्र के 3 युवकों ने संघ के कार्यालय पर झंडा फहरा दिया था, राष्ट्रीय झंडा फहराया था। क्या हुआ था उनके साथ? सालों सालों मुकदमा चला। संघ ने एक बार भी नहीं कहा कि हम उस मुकदमे को वापस लेना चाहते हैं। न्यायालय से जो आरोपी थे युवक, उनको वो बरी हुए। संघ तो नहीं किया, संघ तो मुकदमा लड़ा था बकायदे। तो अगर संघ संविधान के प्रति इतना ही गंभीर रहा होता तो संविधान की बात करता ना, फिर इस तरह की बात थोड़ी करता। उसको अपने लोगों को अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश है, क्योंकि संविधान को लेकर बढ़ता हुआ विमर्श संघ और संघ की सोच रखने वालों के लिए बड़ी चुनौती है। समाज का जो बहुसंख्यक, समाज का जो उच्च वर्ग है, वह आपको राजनीतिक ताकत नहीं दे सकता, विमर्श में तो रख सकता है। और राजे महाराजे हमेशा से बीजेपी के साथ रहे हैं, या विश्व हिंदू परिषद के साथ रहे हैं, या आरएसएस के साथ रहे हैं, या जनसंघ के साथ रहे हैं। लेकिन समाज का वह वर्ग जो संविधान के आधार पर अपनी तरक्की देखना चाहता था, उन्होंने कभी उनका समर्थन नहीं किया। इसलिए भी नहीं किया कि वो संविधान के ऊपर विश्वास नहीं करते थे और संविधान के माध्यम से देश को बढ़ाना भी नहीं चाहते थे। तो अगर आप देश के संविधान को नहीं मानेंगे, संविधान से इतर संस्थाओं को आप विकसित करने का प्रयास करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, एक विचारधारा विशेष को ही पुष्पित प्रज्वलित करने का प्रयास करेंगे, जो इस देश की बहुसंस्कृतिवाद है उसके प्रति, उसको मजबूत करने के प्रति अगर कोई आपकी आस्था नहीं होगी, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि आप इस तरह का बयान देंगे। लेकिन यह बयान उन लोगों के प्रति, आम लोगों के प्रति बहुत अच्छा संदेश इसका नहीं जाएगा, और यह बात और गंभीर होगी लोगों के बीच में कि संविधान खतरे में है। यह बात और जड़ पकड़ेगी कि संविधान से मिले हुए अधिकार लोगों के, उसको कंप्रोमाइज करने का प्रयास किया जा सकता है जी। यह मुद्दा गर्म, और यह मुद्दा और विमर्श में आएगा और लोग इसको और गंभीरता से लेंगे। इस तरह के बयानों से संघ को कोई नया समर्थक वर्ग मिल जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। इन चीजों को मानने वाले लोग पहले से ही संघ के साथ हैं।
जो आजादी की लड़ाई को लेकर के, आजादी के नायकों को लेकर के तमाम तरह के सवाल पैदा करते रहे हैं या उनके बारे में तरह तरह की सूचनाएं घूमती रही। कोई नया समर्थक वर्ग मिलेगा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। यह जरूर है कि वो ताकतें अपने आप को और मजबूत करेंगी जो इस सोच और इस प्रवृत्ति के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये और संविधान के तहत बहुत सारी चीज़ें, और ख़ासकर अमित शाह के बयान के बाद से क्या बहुत कुछ परेशानियों में, बहुत ज़्यादा परेशानियों में है भाजपा, और उसमें ये बचाव की प्रक्रिया है, आखिर क्या है? हेमंत कुमार जी, ज़रा आपसे भी समझो। हेमंत जी आप जुड़े हैं? हेमंत जी नहीं जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं है। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या ये बचाव का है जरिया, रास्ता, लेकिन फंसेंगे? राजीव जी, बचाव का रास्ता भी है और बचाव के साथ साथ अपने असली रूप में भी सामने आ रहे हैं। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, मतलब कि पहले भी कह चुके हैं कि लड़ाई हमारी विचार की है और आमने सामने की है, लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहा था। तो आरएसएस भी इसको एक तरीके से स्वीकार कर रहा है कि अब हाँ, यह विचार की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस से संचालित करता है, वो खुलकर सामने आ रहा है। अभी तक ये कहता था आरएसएस कि वो सब सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति से दूर रहता है, उसके स्वयंसेवक जो है तमाम जगह जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी चले जाते हैं, इस तरह की बातें करता था आरएसएस। लेकिन अब आरएसएस खुलकर ये बात स्वीकार कर रहा है कि हाँ, वो राजनीतिक संगठन है और राजनीति करता है, उस देश की सत्ता पर कब्जा करना उसका असली उद्देश्य है। और उसको लगता है कि अब उसके स्वयंसेवक जो पीछे छद्म रूप में काम करते थे, उन्हें छद्म रूप में काम करने की आवश्यकता नहीं है, अब वो खुलकर काम कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से सीधे सीधे भारत के संविधान को चुनौती और इस देश की आजादी को चुनौती मोहन भागवत दे रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कोई दूसरा देश होता तो वहां गिरफ्तार कर ली जाती और देशद्रोह का मुकदमा चलता, निश्चित तौर पर राजीव जी, अगर कोई दूसरा देश होता, चीन में अगर इस तरह ये बयान दे दिया होता तब तो लैंप पोस्ट पर लटके हुए मिलते भागवत जी। तो ये जिस तरीके से भागवत दे रहे हैं बयान खुलकर और लगातार भारत के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि कोई अगर कोई गैर पंजीकृत संगठन जो है, मतलब आरएसएस अभी तक आरएसएस का पंजीकरण नहीं हुआ है, गैर पंजीकृत संगठन है, तो अगर कोई गैर पंजीकृत संगठन खुलेआम इस देश के संविधान को चुनौती दे रहा है, इस देश की आजादी की लड़ाई को अगर चुनौती दे रहा है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को भी अब इस पे देखना चाहिए, क्योंकि संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सीधे सीधे भारत के संविधान को सुप्रीम कोर्ट को चुनौती मोहन भागवत ने दी है, और इसलिए दी है कि उन्हें लगता है कि उनके पास अब ताकत आ गई है, स्वयंसेवक प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया है, ये और बहुत बड़ी बात हो गई है। तो इसलिए उनको लगता है कि अब इस देश पे कब्जा किया जा सकता है, और इसलिए मोहन भागवत इस तरह की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोहन भागवत ने आखिर ऐसी बातें क्यों कही, ये बड़ा सवाल है। अभी तक तो कोई 99 साल की लीज की बात करता था भारत की आज़ादी को लेके, तो कोई कुछ और कहता रहा, और लोगों को, और ये बात बहुत मुखरता के साथ कही गई कि 2014 के बाद आज़ादी मिली, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को आज़ादी, सच्ची सांस्कृतिक आज़ादी मिली है। तो क्या कहा जाए, क्या माना जाए, क्या मायने हैं इसके? इसी पे हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर यहाँ मोहन भागवत को ज़रूरत क्यों पड़ी, लेकिन राहुल गांधी ने जो लड़ाई छेड़ी है वो कहाँ तक जाएगी। और एक बात जो शकील अख्तर जी कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि राहुल गांधी ने कहा कि जब तक मेरी सांस है तब तक मैं इस देश के उन तमाम तबकों को, खासकर उसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सबकी बात वो कर रहे थे, उन सब के लिए खड़ा रहूँगा। इसके क्या मायने हैं, इस पर भी चर्चा हम कर चुके हैं। देश में, और उसमें भी देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव है, और चुनाव में की गर्माहट अभी धीरे धीरे बढ़ेगी। दिल्ली में सर्दी है, आज सुबह धुंध कोहरा बहुत छाया हुआ था, ज़ीरो विजिबिलिटी थी, लेकिन फिर भी लोग इन बातों पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें देश के उन शहीदों के नाम और उनके अपमान के लिए कही जा रही हैं बातें। और ख़ासकर जब आप फंसते हैं, संविधान के नाम पर फंसते हैं, तो आप ऐसी अनाप शनाप बातें करेंगे ही, और वही लग भी रहा है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपका क्लोजिंग कमेंट के लिए, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, सुनील शुक्ला जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हेमंत कुमार जी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।